Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your computer teacher. So now we will start revision of lesson number 2, parts of computer. We had learned this lesson already, okay? Then also now we will do revision. So what is the lesson now? Parts of computer. So which parts of computer? Computer has a main 4 parts. How many parts? 4 parts. Which 4 parts? Monitor, CPU, keyboard, mouse. This is the main parts of computer. Computer के कितने main parts है? 4. Which 4? Monitor, CPU, keyboard, mouse. This is the main parts of computer. So what is the spelling of monitor? चलो मेरे पीछे बोलो, all of you. MONITOR. Monitor. What is the spelling of monitor? MONITOR. This is the spelling of monitor. So this word write in your notebook 3 times. कितने टाइम्स लिखना है आपके नोटबुक में? 3 times. Then next is the CPU cabinets. What is the spelling of CPU cabinets? So all of you say CPU. What is the spelling of CPU? CPU. CABINET. Cabinet. CPU cabinet. What is this spelling? CPU cabinet. क्या है CPU cabinet का spelling? बोलो. CPUCABINET. ओके, ये भी आपको नोटबुक में कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स. देन नेक्स्ट इज द कीबोर्ड. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड? KEYBOARD. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड. चलो बोलो आप सब जन. KEYBOARD. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड. दिस आल्सो राइट इन योर नोटबुक 3 टाइम्स. कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स. नाउ दिस इज द mouse. What is this? Mouse. What is the spelling of mouse? बोलो सब जन. MOUSE. What is the spelling of mouse? MOUSE. This is the spelling of mouse. Okay. All of them together make a computer system. जब ये सभी पार्ट्स, कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सभी पार्ट्स साथ में आते हैं, तब क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम. क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम. ऑल ऑफ दिस पार्ट्स आर जनरली कनेक्टेड बाय वायर टू मेक देम वर्क. लेट स्टडी देम पार्ट्स वन बाय वन. ये सभी पार्ट्स से जनरली किससे अटैच रहते हैं? कनेक्टेड बाय अ वायर. वायर से कनेक्टेड रहते हैं ये सभी पार्ट्स. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट अवर टॉपिक्स. सो फर्स्ट इज दिस इज द मॉनिटर. व्हाट इज दिस? मॉनिटर. दिस इज द लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. ये कैसे, किसके तरह दिखते हैं? टेलीविजन स्क्रीन. ये आपके टीवी के स्क्रीन की तरह दिखता है. लुक एट this is look like a television screen. A monitor is also known as virtual display unit. monitor को हम क्या बोलते हैं? virtual display unit. monitor is also known as virtual display unit, VDU. it display word and picture. हम इसमें क्या देख सकते हैं? पिक्चर, वर्ड देख सकते हैं. You can also watch cartoon films and ऑन अ मॉनिटर. आप उसमें क्या देख सकते हैं? कार्टून की मूवी भी देख सकते हो. देन नेक्स्ट इज द CPU कैबिनेट. दिस इज द CPU कैबिनेट. CPU कैबिनेट इट आल्सो नोन एज CPU बॉक्स. इसको हम CPU बॉक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? CPU बॉक्स.
द CPU कैबिनेट कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C means central, P means processing and U means unit. What is the full form of CPU? CPU full form central processing unit. What is the spelling of central processing unit? बोलो सब जन। CNTR, again one time, CENTRAL, central, PROCESSING, processing, UNIT, unit. This is the spelling of CPU, central processing unit. यह भी आप कितने टाइम्स लिखो, 3 टाइम्स लिखो। CPU cabinets contain the central processing unit. Okay. The CPU is a brain of computer. It control the all parts of computer. CPU को क्या बोलते हैं, brain of computer. Why saying CPU brain of computer? CPU को brain of computer क्यों बोलते हैं? Because CPU control all parts of computer. CPU क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है उसको कंट्रोल करते हैं। लाइक दैट यूअर ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन क्या करता है, आपके बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। वैसे ये CPU भी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देन नेक्स्ट इज द कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ अ मेनी बटन। कीबोर्ड में क्या रहती है, बहुत सारी बटन्स रहती है, उसको बोलते हैं कीज़। क्या बोलते हैं, कीज़। अ कीबोर्ड हैज़ अ मेनी बटन कॉल कीज़। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन रहती है, उसको हम बोलते हैं कीज़। दिस इज द कीबोर्ड। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना सभी बटन्स, ये बटन्स को हम बोलते हैं कीज़। सो कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, की प्लस बोर्ड। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम की बोलते हैं। बोर्ड मतलब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें बटन्स है, एक बोर्ड में क्या है, कीज है, उसका मतलब क्या होता है, की बोर्ड। नेक्स्ट इज द माउस। ओके, दिस इज द माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। Normally joined by cable to a computer. It helps us point at things on a computer monitor. The mouse is also used to click and drag, move things on the computer monitor. It can help us draw picture too. A mouse can be handled better when kept on a mouse pad as it moves well on a smooth surface. हाँ, माउस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मली जॉइन बाय केबल टू द कंप्यूटर। जो हमारा माउस है वो किससे कनेक्टेड होता है, केबल से कनेक्ट होता है। माउस का यूज़ क्या है, माउस हम यूज़ करते हैं क्लिक एंड ड्रग्स मूव करने के लिए। हमारे जो मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, इस पर आपको एक ऐसा एरो दिखता होगा सबको, ऐसा एरो दिखता है। अगर हम माउस को ऐसे हिलाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो पॉइंट है क्या होता है, मूव होता है, इधर उधर जाता है, मूव होता है। तो वही माउस का क्या है, हमारे जो क्या रहते हैं मॉनिटर पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती है, आइकॉन्स रहते हैं, उस पर क्लिक करना और उसको क्या करना, मूव करना, ये क्या काम है, माउस का यूज़ है। एंड माउस पैड ऑलवेज कीप ऑन द माउस पैड। माउस को कहाँ रखना चाहिए, माउस पैड पे। अगर हम माउस पैड पे माउस रखते हैं तो हमारा माउस कैसे वर्क करता है, स्मूथली, अच्छे से वर्क करता है। सो विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन से हैं, मॉनिटर,
keyboard, CPU and mouse. This is the main parts of computer. How many parts? 4 parts. Okay. Now let's learn about some helping device that help a computer perform different function. अभी क्या है, कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स है जो हम कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं. ठीक है, ये मेन पार्ट्स नहीं है लेकिन हम कंप्यूटर में उसको लगा सकते हैं. फर्स्ट इज द प्रिंटर. व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर? अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी यूजली ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन यूर कंप्यूटर. प्रिंटर का यूज़ किस लिए करते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, कंप्यूटर में कुछ ड्रॉ किया है, पिक्चर नहीं तो कुछ लेटर वगैरह कुछ लिखा है, और आपको वो क्या चाहिए, जो आपने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फिलअप की है वो आपको किस पे चाहिए, एक पेपर पे चाहिए. लाइक दैट आपको पेपर में चाहिए. तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आप पेपर में कैसे लिख सकते हो? बाय यूजिंग द प्रिंटर. व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रिंटर. प्रिंटर यूज टू टेक आउट. प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी. प्रिंटर का यूज़ किसके लिए होता है? हमारी इंफॉर्मेशन कॉपी पे निकालने के लिए. देन नेक्स्ट इज द माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन. Before starting, so look at here. First is the printer. Okay, what is the spelling of printer? Printer का spelling क्या है? P-R-I-N-T-E-R. What is the spelling of printer? P-R-I-N-T-E-R. This is the spelling of printer. So ये आपको कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स आपके नोटबुक में लिखना है. ठीक है, प्रिंटर का स्पेलिंग P-R-I-N-T-E-R. Now we will start microphone, speaker and headphone. Microphones and speaker when attached to a computer form a sound system of the computer. They are parts of multimedia device of computer. Multimedia means many. Computer system allow us hear sound and watch movie beside later as read text on the monitor all at the same time. तो हमारा माइक्रोफोन और स्पीकर, इसका यूज़ क्या होता है? अगर हमें क्या करना है, कंप्यूटर में कुछ गाना रिकॉर्ड करना है, गाने सुनने हैं, मूवी देखना है, तो वो जो हमारा जो मूवी का साउंड है, ठीक है, वो किससे सुनाई देगा? हमें स्पीकर से सुनाई देगा. तो माइक्रोफोन और स्पीकर जब कंप्यूटर को अटैच होते हैं, क्या होते हैं? कंप्यूटर को अटैच होते, तो क्या बनता है? मल्टीमीडिया डिवाइस. ओके, दे आर द पार्ट्स ऑफ मल्टीमीडिया डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. मल्टीमीडिया इज द कंप्यूटर सिस्टम अलाउड अस हियर साउंड. ओके, जब कंप्यूटर को क्या अटैच होता है? मल्टीमीडिया डिवाइस, तब हमें क्या होता है? हम क्या कर सकते हैं उससे? हमारा साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम कुछ सुन भी सकते हैं. ठीक है, सो लुक एट देयर माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इट इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड. इट इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड. माइक्रोफोन का यूज़ किसके लिए होता है? हमें कुछ रिकॉर्ड करना है. ओके, सो हम क्या करते हैं? माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो. मैं अभी वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो वीडियो मैं किससे हेल्प से कर रही हूँ? माइक्रोफोन से. ठीक है, अगर माइक्रोफोन ही नहीं है तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्या वीडियो? नहीं. सो दिस इज द यूज ऑफ माइक्रोफोन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माइक्रोफोन? बोलो सब जन. MICROPHONE. Microphone. What is the spelling of microphone? MICROPHONE.
HONE. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ माइक्रोफोन. ये आपको नोटबुक में कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स. ओके, दिस इज द माइक्रोफोन. ये क्या है? माइक्रोफोन. देन नेक्स्ट इज द स्पीकर. They are used to listen to recorded sound as well as music. स्पीकर से हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड किया हुआ साउंड सुन सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम मेकिंग वीडियो. ओके, मैं वीडियो बना रही हूँ और वो आप सुन रहे हो. किससे हेल्प से सुन रहे हैं? स्पीकर के हेल्प से. आप क्या सुन रहे हो? मेरा वीडियो सुन रहे हैं. मतलब वो क्या है? स्पीकर. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पीकर. ये क्या है? स्पीकर है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पीकर? बोलो सब जन. SPEAKERS. स्पीकर्स. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पीकर्स? SPEAKERS. So this also write in your notebook 3 times. कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स. नेक्स्ट इज द हेडफोन. हेडफोन का यूज़ किसके लिए करते हैं? लुक एट देयर, दैट बॉय इज यूजिंग अ हेडफोन. दे are used to listen to record sound as well as music without disturbing other. Only the person who is wearing the headphone can be hear the music or recording sound. हेडफोन का यूज़ किसके लिए करते हैं? अगर हमें कुछ सुनना है, ठीक है, हमें गाना सुनना है, मूवी देखना है, रिकॉर्ड साउंड सुनना है, कुछ भी सुनना है हमें कंप्यूटर से नहीं तो मोबाइल से, तो हम क्या करते हैं? हम हेडफोन लगाते. मतलब हेडफोन लगाएंगे तो वो जो साउंड है सिर्फ हमें वो किसको सुनाई देगा? जो हेडफोन लगाया है उनको ही सुनाई देगा. हेडफोन क्यों लगाते हैं? अगर हमें कुछ सुनना है और कोई कुछ काम कर रहा है तो वो उससे हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो दैट फॉर वी आर यूजिंग द हेडफोन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेडफोन? HEADPHONES. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ हेडफोन. हेडफोन का स्पेलिंग क्या है? HEADPHONES. This is the spelling of headphone. So these also write in your notebook 3 times. कितने टाइम्स लिखना है? 3 times. Now look at their input and output device. Till now you have learned about the numbers of parts helping device of computer. They can divide into 2 groups. ठीक है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो इनपुट डिवाइस है और दूसरा है आउटपुट डिवाइस. ठीक है, सो कौन से इनपुट डिवाइस है, किसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं और आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? सो लुक एट इट. इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर. द इनपुट डिवाइस आर. इनपुट डिवाइस किससे बोलते हैं? हम जिससे कंप्यूटर में इनपुट मतलब डेटा फिलअप कर सकते हैं. सपोज कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड का यूज़ किसके लिए करते हैं? कुछ हमें टाइप करना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. मतलब हम क्या करें? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फिलअप करें. मतलब वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है. मतलब वो क्या है? इनपुट डिवाइस. देन माउस का भी यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ड्राइंग बनाने के लिए, कुछ क्लिक करने के लिए, मूव करने के लिए. मतलब हम माउस से भी क्या करते हैं? इन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को. उसके लिए माउस को भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं. और माइक्रोफोन का यूज़ किसके लिए करते हैं? हम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए. माइक्रोफोन इज़ यूज फॉर अ रिकॉर्डिंग और साउंड. सो जो हम रिकॉर्ड करते हैं साउंड वो कंप्यूटर के अंदर जाता है. किसके हेल्प से? माइक्रोफोन से. देन नेक्स्ट इज द आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज द यूज ऑफ output device? Output is used to give output. The output may be form a word, letter, image or sound. The output device are.
आउटपुट डिवाइस से क्या मिलता है, कंप्यूटर के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बाहर निकलती है, दिखती है, किसके फॉर्म में, वर्ड, लेटर्स, इमेज और साउंड के फॉर्म में दिखती है। ठीक है। सो मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर से हमें क्या दिखता है, हम जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में वो हमें कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है। मतलब हमें कंप्यूटर क्या कर रहा है, अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर दिखा रहा है, मतलब आउट कर रहा है। ठीक है। प्रिंटर से हम क्या निकालते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकालते हैं, मतलब प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज द स्पीकर से भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो क्या है साउंड है उसको हम सुनते हैं, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, मतलब साउंड बाहर आ रहा है। और हेडफोन का भी सेम है, हेडफोन से हम क्या सुनते हैं, गाना, म्यूज़िक, साउंड सुनते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के अंदर जो क्या है सॉन्ग है, साउंड है, वो हमें बाहर आ रहा है, मतलब हमें सुनाई दे रहा है, मतलब वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज द UPS. It is stand for Uninterrupted Power Supply. A UPS keep the computer work for a some time even after the electricity gone off. UPS का यूज़ क्या होता है, अगर आप कुछ कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो और सडनली क्या चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो UPS से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम जो फिलअप कर रहे हैं तो उसको हम सेव कर सकते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, वर्क वेस्ट नहीं होगा अगर UPS कंप्यूटर को लगा है तो। ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव. So what is the use of this? Floppy disks, hard disks, CD, DVD and pen drive are used to store information permanently. ठीक है, ये क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। तो फर्स्ट इज द फ्लॉपी डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क इज द स्क्वायर इन शेप। फ्लॉपी डिस्क का शेप कैसा रहता है, स्क्वायर। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्लॉपी डिस्क, FLOPPY DISK, floppy disk. What is the spelling of floppy disk? All of you say FLOPPYDISK, floppy disk. This also write in your notebook 3 times. उसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप। A hard disk is like a box. It is the fixed inside the CPU cabinets. When you save a file on the computer, it is saved on the hard disk. Hard disk कहाँ रहती है, CPU बॉक्स के अंदर रहती है, ये CPU बॉक्स के अंदर रहती है। ठीक है। हार्ड डिस्क का यूज़ क्या है, जब हम हार्ड डिस्क हम कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करते हैं तो वो हमारी जितना भी वर्क है वो किसके अंदर सेव होता है, ये हार्ड डिस्क से, उसके अंदर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, सेव होती है, जो हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हार्ड डिस्क, HERD, हार्ड, DISK, डिस्क, हार्ड डिस्क। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हार्ड डिस्क, बोलो सब जन, HARDDISK. These also write in your notebook 3 times. Okay. Next is the a CD can store more information than a floppy disk. CD है, उसके अंदर हम इसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मोर देन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है CD में। बोथ अ CD एंड DVD आर द राउंड एंड अदर सेम साइज, बट CD और DVD दोनों का भी साइज़ कैसा है, साइज़ और शेप दोनों का भी राउंड रहते हो और दोनों की भी साइज सेम रहती है। बट DVD स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन द CD। DVD में CD से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव इज़ आल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। इट हेल्प यू स्टोर डेटा एंड कैरी द डेटा विथ यू। इट इज़ ईजी टू यूज़ and small enough to the carry in your pocket. It can store more data and a CD and DVD। ठीक है, पेन ड्राइव का यूज़ किसके लिए करते हैं हम? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और वो कैसी रहती है? स्मॉल साइज़ की रहती है, तो हम उसको कहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। वो छोटी रहती है, उसको वो पॉकेट में भी हम उसको कैरी कर सकती है। पेन ड्राइव इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन ड्राइव? PENDRIVE। पेन ड्राइव। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन ड्राइव? PENDRIVE। पेन ड्राइव। इट इज आल्सो नोन एज, ये भी आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखना है। It is known as flash drive. What is the flash drive? FLASHDRIVE। Flash drive. What is the spelling of flash drive? FLASHDRIVE। This also write in your notebook 3 times. Okay. I hope all of you nicely understood lesson. Now look at our exercise. Which of the following input device put the right or cross the मतलब wrong the box given in each। हमारी जो इनपुट डिवाइस है उसको हमें राइट करना है और जो नहीं है उसको रॉन्ग करना है। सो दिस इज द यूपीएस। यूपीएस इनपुट डिवाइस है क्या? नहीं। देन स्पीकर भी है क्या? नहीं। स्पीकर से हम गाना सुनते हैं, मतलब वो आउटपुट है। प्रिंटर से भी हम क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं, मतलब ये भी आउटपुट है। देन दिस इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। नाउ लुक एट इन क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अ मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड अ वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। हम मॉनिटर को क्या बोलते हैं? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। ठीक है। द फिलिंग द ब्लैंक्स कैबिनेट कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU। अ फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़ अ मेनी बटन्स कॉल्ड कीज। ठीक है, किसको हम किस में बटन्स रहते हैं उसको कीज बोलते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स रहते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसको कीज। अ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। किसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अ फिलिंग द ब्लैंक्स कीप द कंप्यूटर इन द वर्क स्टेट फॉर अ सम टाइम इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। किसका यूज़ हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी हम मतलब किससे हमारा वर्क सेव होता है? यूपीएस। यूपीएस के वजह से क्या होता है? हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी गॉन होने के बाद भी थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर स्टार्ट रहता है। ओके, नाउ लुक एट इन क्वेश्चन नंबर 4। राइट द T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अ CPU control the all parts of computer except the input device. This is the wrong F because CPU control the all parts of computer. Speaker can be used to listen music without disturbing other. स्पीकर का यूज़ हम गाना सुनने के लिए करते हैं, लेकिन हम उस वही क्या बोल रहे हैं? डिस्टर्बिंग विदाउट डिस्टर्बिंग टू अदर। लेकिन हम जब स्पीकर लगाते हैं तब क्या होता है? सबको आवाज़ सुनाई देता है, तो दिस आल्सो फॉल्स F। अ CD कैन स्टोर मोर डेटा दैन अ DVD। क्या बोल रहे हैं? CD में हम DVD से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द रॉन्ग। हम DVD में इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं CD से। अ पेन ड्राइव कैन ईजीली कैरी इन यूर पॉकेट। हम पेन ड्राइव को ईजीली हमारे पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। यस, सो दिस इज द ट्रू। हार्ड डिस्क कैन बी फिक्स ऑन अ फिक्स और पोर्टेबल। हार्ड डिस्क क्या रहती है? फिक्स रहती है। यस, हार्ड डिस्क इज फिक्स ऑन अवर CPU। ओके, नाउ लुक एट ई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर
इसमें से कौन से पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के? मॉनिटर, यस. CPU कैबिनेट, यस. कीबोर्ड एंड माउस, यस. सो ऑल ऑफ दिस, सभी हमारे क्या है? CPU, सभी हमारे क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं. नेक्स्ट इज द विच वन इज़ द ट्रू अबाउट द CPU. CPU के बारे में इसमें से क्या सही है? इट फुल फॉर्म अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यस. इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यस. CPU का हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. इट कंट्रोल द ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यस. CPU कंट्रोल द ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सो हमारा आंसर है फॉर ऑल ऑफ अबाउ, मतलब ये सभी क्या है? सही है CPU के लिए. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर C. विच वन इज़ द इनपुट डिवाइस. इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर है क्या? नहीं. स्पीकर है क्या? नहीं. माइक्रोफोन, यस. माइक्रोफोन इज़ द इनपुट डिवाइस. हेडफोन नहीं है. सो हमारा आंसर क्या है? माइक्रोफोन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू स्टोर डेटा. इसमें से हम किसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करते? CD का करते हैं, यस. DVD को, यस. पेन ड्राइव को, यस. UPS को नहीं. UPS को हम डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए नहीं करते. सो UPS. विच वन इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसमें से किसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं? कीबोर्ड को नहीं. माउस को, यस. माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं. प्रिंटर को नहीं. हार्ड डिस्क को नहीं. हम पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं? माउस को. नाउ लुक एट इन क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कौन से 4 मेन पार्ट्स है? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड्स, माउस आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. व्हाट आर द इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? इनपुट डिवाइस आर वन दैट आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा फिलअप करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस. डिफाइन द आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस मतलब आउटपुट डिवाइस आर वन इज दैट आर यूज टू गिव आउटपुट आर टेक्स्ट, इमेज, etc. आउटपुट डिवाइस से हमें क्या मिलता है? कंप्यूटर के कंप्यूटर के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बाहर दिखते हैं. किसके फॉर्म में दिखते हैं? टेक्स्ट, इमेज, साउंड, etc. ठीक है. लिस्ट द 2 यूजेस ऑफ माउस. माउस के 2 यूजेस लिखना है. माउस इज यूज टू पॉइंट एट द थिंग ऑन द कंप्यूटर. माउस के हेल्प से हम क्या करते हैं? कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग ऑन द मॉनिटर. हम कंप्यूटर माउस से क्या कर सकते हैं? कहीं पे क्लिक कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर E. मेंशन द 2 डिवाइस यूज टू लिसन रिकॉर्डिंग साउंड और म्यूजिक. किसके हेल्प से हम रिकॉर्डिंग साउंड सुन सकते हैं? स्पीकर और हेडफोन से. देन नेम द एनी 3 डिवाइस स्टोवर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली. किस किस में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? CD, DVD, पेन ड्राइव. ठीक है. इसमें हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड क्वेश्चन आंसर. नाउ वन थिंग्स, दिस इज द प्रोजेक्ट. ठीक है. पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. ये आपके लिए क्या है? प्रोजेक्ट है. ड्रॉ अ फिगर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन यूर नोटबुक एंड लेबल इट्स पार्ट्स. आपको क्या करना है? कंप्यूटर सिस्टम मतलब माउस, कीबोर्ड. ठीक है. उसके बाद मॉनिटर और ये CPU. इसके आपको क्या करना है? पिक्चर निकालना है. ठीक है. मैं आपको एक वर्कशीट भेज रही हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है. सो लुक एट देयर. लाइक दैट आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चन आंसर एंड आपको प्रोजेक्ट भी भेज रही हूँ. तो आपको कौन से पार्ट्स निकालने हैं?
ये जो 4 पार्ट्स है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये आपको निकालना है आपके नोटबुक में, ठीक है। दिस इज़ द कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, ये आपको कंपलसरी है, सबको निकालना है और उसको कलर भी करना है, बाद में आपको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और ये 15 और 8-20 आपको ये 15 अगस्त तक सेंड करना है, ठीक है। I hope all of you nicely understood lesson. Thank you and have a nice day.